السلام علیکم، BBN نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ثانیہ۔ نیوز کی شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائن سے۔ بٹلہ ہاؤس اور شاہین باغ میں MCD الیکشن 2022 جلسے کی تیاری۔ MIM پارٹی کے سربراہ اسد الدین اویسی کریں گے شرکت۔ ایلائٹ اسکول کے طلباء کے لیے ملٹی پرپز سائنس ایگزیبیشن کا انعقاد۔ KG تا تیسری جماعت کے طلباء و طالبات نے بہترین ماڈلز کیے پیش۔ اور اروند کیجریوال نے مسلمانوں اور تبلیغی جماعت کو بدنام کیا تھا، MIM سربراہ اسد الدین اویسی کا الزام۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ دہلی میں میونسپل کارپوریشن کے انتخابات کے پیش نظر سیاسی رہنما اپنی پارٹیوں کے امیدواروں کے لیے انتخابی تشہیر میں زور و شور سے مصروف ہیں۔ دہلی میونسپل کارپوریشن 2022 کے انتخابات کی تاریخ جو ہی قریب آ رہی ہیں، امیدواروں کی حمایت میں قومی رہنما بھی میدان میں اترتے اور جلسے جلوس میں شرکت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اسی کو لے کر قومی دارالحکومت دہلی کے مسلم اکثریتی علاقے بٹلہ ہاؤس اور ابوالفضل شاہین باغ وارڈوں میں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے جلسے ہونے والے ہیں، جس میں پارٹی کے سربراہ و رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی شرکت کر رہے ہیں۔ ان کی آمد کے پیش نظر MIM کے کارکنان میں جوش و خروش پایا جا رہا ہے۔ وہیں جب میڈیا کے نمائندوں نے بٹلہ ہاؤس ابوالفضل شاہین نگر کے لوگوں سے بات چیت کی تو انہوں نے اپنے وارڈ کے مسائل اور رہنما و پارٹیوں کے بارے میں اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ ایلائٹ اسکول پرانی حویلی حیدرآباد میں پرائمری جماعت کے طلباء کے لیے ملٹی پرپز سائنس ایگزیبیشن کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں طلباء و طالبات نے مختلف ماڈلز کے ذریعے سائنسی تجربات کو پیش کیا۔ اس نمائش میں بچوں نے اساتذہ اور سرپرستوں کی مدد سے بہترین تخلیقی صلاحیتوں کا نمونہ پیش کیا۔ طلباء نے قدرتی وسائل، انسانی اعضاء کے کام کاج، پیڑ پودوں کی نشو و نما، ان سب کو ماڈلز کے ذریعے بہترین انداز میں ناظرین کو سمجھانے کی کوشش کی۔ پرنسپل ایلائٹ اسکول محترمہ اختر بیگم صاحبہ نے کہا کہ اس طرح کی نمائش اسکول میں ہر سال منعقد کی جاتی ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ طلباء سائنسی و ثقافتی علم کو آسانی سے سمجھ سکیں اور سمجھانے کے بھی قابل بنیں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح سے طلباء کو گروپس کی شکل میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر سیکھنے کا موقع بھی فراہم ہوتا ہے اور طلباء کی اختراعی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اولیاء طلباء نے بھی اس نمائش کا مشاہدہ کیا اور طلباء کی حوصلہ افزائی کی اور اسکول انتظامیہ کو مبارکباد دی۔ اس موقع پر اسکول کے اساتذہ نے بھی والدین اور سرپرستوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے بچوں کو اس طرح کی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے لیے حوصلہ افزائی کریں۔ دکن NRIs گروپ کی جانب سے اتوار کو ایک روزہ مفت آئی کیمپ کا حسن نگر میں انعقاد عمل میں آیا، جس سے کئی خواتین و حضرات نے استفادہ کیا۔ چیئرمین دکن NRIs گروپ انجینئر عبدالقدیر قادر اور پریزیڈنٹ سید کلیم نے اس کیمپ کی نگرانی کی اور اگلے ہفتے مفت عینکیں تقسیم کرنے کا بھی اعلان کیا۔ بارزاں عبدالقدیر خالد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تفصیلات بتائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید عبدالقدیر چیئرمین دکن NRIs گروپ آپ سے مخاطب ہوں اور تھوڑا سا میں آج کے اس ایونٹ کے بارے میں بولنا چاہوں گا۔ یہ آزاد ڈے سیلیبریشن کے تحت ہو رہا ہے اور یہ آئی کیمپ ہم کر رہے ہیں۔ تقریباً ہمارا ٹارگیٹ 200 پلس کا ہے اور تقریباً 100 سے زیادہ لوگ جو آ چکے ہیں آلریڈی، اور یہ ہمارا کیمپ تقریباً 6 بجے تک چلے گا انشاءاللہ، اور اس کے چشموں کی تقسیم وغیرہ جو ہے 4 دسمبر کو ہوگی۔ یہ جو ہے ہم کافی پہلے کر چکے ہیں، یہ اس سے پہلے اجامہ کیمپ کرے تھے، اس سے پہلے آئی کیمپ کرے تھے۔ یہیں پر ہمارا یہ مرکز ہے، اولڈ ایج ہوم حسن نگر کا جو ہے شفاء اللہ، وہ ہمارا مرکز ہے۔ اب تھوڑا سا تنظیم کے بارے میں یہ ہے کہ میں یہ تنظیم 2007 میں شروع کرا تھا جدہ میں، اور جو ہے اب یہاں پر 2017 میں حیدرآباد چیپٹر شروع ہوا۔ ہمارے 2 صدر ہیں، ایک شکیل احمد ہیں اور جدہ کے، اور یہ ہمارے کلیم صاحب ہیں حیدرآباد چیپٹر کے۔ یہ ہم کافی سارا سوشل ورک کرتے ہیں، جیسا کہ منتھلی راشن سپلائی، سمجھے آپ، اولڈ ایج ہوم کو راشن سپلائی، اور ایجوکیشن میں سپورٹ، میڈیکل سپورٹ،
रमज़ान फूड पैकेज और जैसा कि हैदराबाद फ्लड विक्टिम हुए थे उनको काफ़ी सारी सपोर्ट किए और कोविड-19 में भी काफ़ी सारी सपोर्ट की हम लोग। ये इस तरह से हमारा काम चल रहा है। तकरीबन ये जो है 22 चल रहा है, 2007 से हम शुरू करें, ये चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बस कैंप के बाद जो है हम ब्लैंकेट ड्राइव हमारा चल रहा है, फर्स्ट फेज़ हो गया है, सेकेंड फेज़ होने वाला है और इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम है कि जनवरी में एक एनुअल फंक्शन करेंगे और उस वक्त जो है हम सारे लोगों को बुलाएंगे। और हम लोग, हमारा एक यूनिक तरीक़ा ये है कि हम मंथली हमारी मीटिंग होती है और हम जो है हैदराबाद के परमानेंट मेंबर्स, जिसमें हमारे डॉक्टर आसिफ हैं, डॉक्टर मसूद अहमद हैं, ये सारे लोगों को हम जो है फैसिलिटेट करते हैं, तहनीत पेश करते हैं, उनको हिम्मत अफजाई, हौसला अफजाई देते हैं ताकि वो और काम करे। ये हमारी तंजीम का ये यूनिक तरीक़ा है समझिए। और जनवरी से फिर स्टार्ट करेंगे। हमारे फर्स्ट मेहमान जो होंगे, गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर मजीद बेदार साहब होंगे। इससे पहले जो है तकरीबन 8 हम परमानेंट मेंबर्स को तहनीत पेश कर चुके हैं, जिसमें वाईएसआर का मुजस्समा जंगमा जिले के मरकज में वाईएसआर पार्टी जंगमा के जिले कोऑर्डिनेटर वेंकटा रेड्डी की क़यादत में वाईएसआर पार्टी तेलंगाना रियासती सदर वाईएस शर्मिला ने तेलंगाना में अब तक 3600 किलोमीटर की पदयात्रा की तकमील के मौके पर केक काट कर जश्न मनाया। कोऑर्डिनेटर वेंकटा रेड्डी ने एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना की आवाम टीआरएस, बीजेपी, कांग्रेस से तंग आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि वाईएस राजशेखर रेड्डी ने बहुत से फलाही प्रोग्राम किए जब वो चीफ मिनिस्टर थे, जिससे आवाम को फायदा पहुंचा। यही वजह है कि वाईएस राजशेखर रेड्डी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लोगों ने कहा कि वो जीतेंगे। इस प्रोग्राम में जनागमा खवातीन और नौजवान कारकुनों ने शिरकत की। వైఎస్ఆర్ షర్మిల 3500 కిలోమీటర్లు పాదయాత్ర చేసి ఎంతో మహామౌలు చేయనటువంటి మగవాళ్ళు కూడా చేయనటువంటి యాత్రని ఒక లేడీ, ఒక ఆడ మనిషి పాదయాత్రగా 3500 కిలోమీటర్లు చేసిందంటే అసలు ప్రపంచ రికార్డు గిన్నిస్ బుక్లోకి ఎక్కవలసినటువంటి అంశం ఇది. అంతేకాకుండా ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం యొక్క లోటుపాట్లను పైకి తీస్తూ వెలిగితీస్తూ ఆయన చేస్తున్నటువంటి దుర్మార్గమైనటువంటి పాలనని వెలిగితీస్తూ అక్కడక్కడ ఎమ్మెల్యేలని నిలదీస్తూ వారు చేసినటువంటి భూ కబ్జాలు కావచ్చు, ఇంకే ఇతర కావచ్చు, అన్నిటిని బయట పెడుతూ 3500 కిలోమీటర్లు దాటినందుకు ఆమెకు అభినందనలు, శుభాభినందనలు అన్ని ఇది జనగాం జిల్లా తరఫున। जिले कोमरम भीम आसिफाबाद के सहाफ़ी ने आज हैदराबाद में मुनक्कद होने वाली तेलंगाना वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की दूसरी रियासती कॉन्फ्रेंस के लिए एक खुसूसी बस से रवाना हुए और हैदराबाद में सहाफ़ियों के मसाइल पर बड़ी रैली में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उन्हें तफसीलात से वाकिफ कराया। రాష్ట్ర ద్వితీయ మహాసభలు ఈరోజు హైదరాబాద్లో జరుగుతున్నాయి। దీనికి కొమరంభీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా నుండి పెద్ద సంఖ్యలో జర్నలిస్టులు మేము తరలి వెళ్తున్నాం। ఈ మహాసభల్లో మేము ప్రధానంగా జర్నలిస్టులు ఎదుర్కొన్న సమస్యల గురించి ఈ మహాసభలో చర్చించి తీర్మానాలు చేయనున్నాం। ఈ తీర్మానాలలో జర్నలిస్టుల అక్రిషన్ కార్డు, ప్రతి అర్హులైన ప్రతి జర్నలిస్టులకు అక్రిషన్ కార్డులు ఇవ్వాలి, ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వాలి, జర్నలిస్టుల పిల్లలకు ఫీజు ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో ప్లస్ కార్పొరేట్ పాఠశాలలో 100% ఫీజు మినహాయింపు ఇవ్వాలి, ప్లస్ రైల్వే పాస్లను పునరుద్ధరించాలి। ఈ బస్ పాస్లను కూడా పూర్తిగా స్టేట్ ప్రతి ఒక్క అర్హులైన జర్నలిస్టుకు రాష్ట్ర స్థాయిలో వర్తింపజేసేలా బస్ పాస్లు ఇవ్వాలి। ఇలాంటి ప్రధాన సమస్యల మీద చర్చించి భవిష్యత్తు రూపకల్పన కోసం పోరాటాలు చేసేందుకు ఈ మహాసభలో తీర్మానం చేయనున్నాం। ఈ మహాసభల అనంతరం అన్ని జిల్లాల్లో ఈ డిమాండ్ల పరిష్కారం కోసం పెద్ద ఎత్తున పోరాటాలు చేసేందుకు మేము సిద్ధమవుతున్నాం। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन में निजामाबाद शहर में बुनियादी ढांचे को मजीद बेहतर बनाने व दीगर उमूर पर एक आला सतही जायजा मीटिंग मुनक्कद की और इस मौके पर वजीर आला ने कामों को जल्द मुकम्मल करने के मुतादिद अहकाम जारी किए। इजलास में जिले के वजीर प्रशांत रेड्डी, एमएलसी कविता वेंकट राम रेड्डी, कौशिक रेड्डी, अरकान असेंबली बेगला गणेश गुप्ता, जीवन रेड्डी, रोहित रेड्डी के अलावा म्यूनसिपल स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार, डायरेक्टर सत्यानारायणा, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर राव के अलावा दीगर ओहदेदारों के साथ एक इजलास से मुखातिब किया।
तमाम पार्टियां दिल्ली में एमसीडी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। इसी सिलसिले में AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली पहुंचकर लोगों से MIM के उम्मीदवारों के हक में वोट देने की अपील की। साथ ही उन्होंने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाते हुए कहा कि केजरीवाल ने मुसलमान और तबलीगी जमात को बदनाम करने का काम किया है। बता दें कि MIM ने भी दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में 15 वार्डों में अपने उम्मीदवार खड़ा किए हैं। रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी इतवार को MIM उम्मीदवारों के इंतखाबी मुहिम के लिए दिल्ली पहुंचे और शुमाल मशरक़ी दिल्ली के पुराने मुस्तफ़ाबाद और सलीमपुर समेत मुख्तलिफ इलाकों में जलसों से खिताब किया और MIM के उम्मीदवारों के हक़ में लोगों से वोट देने की अपील की। अमेरिका के मेरीलैंड में एक छोटा तैयारा बिजली की तारों में फंस जाने के बाद गिरकर तबाह हो गया, जिसके बायस इलाके में बिजली मुनक़ते हो गई। तफसीलात के मुताबिक इतवार की शाम एक छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया। तैयारा बिजली की तारों में फंस गया। जब हुक्काम ने तैयारे को निकालने की कोशिश की तो काउंटी के पास के इलाकों में बिजली बंद हो गई। फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं हो सका कि तैयारे पर कितने अफराद सवार थे। ताहम पेट नगर ने इब्तदाई तौर पर ट्वीट किया कि जहाज में 2 अफराद सवार थे। बादशाह उन्होंने एक वीडियो पोस्ट की जिसमें कहा गया है कि जहाज में 3 अफराद सवार थे और वो महफूज हैं। कैमरून के दारुल हुकूमत याओंडे में इतवार को हुई लैंड स्लाइडिंग में आखिरी रसूमात में शामिल होने वाले 14 लोगों की मौत हो गई है। सेंट्रल इलाके के गवर्नर एन पाल बी ने ये इत्तला दी है। उन्होंने ये मुकामी हादसे पर मीडिया को बताया कि हम नाशों को मरकजी अस्पताल के मुर्दा घर ले जा रहे हैं, जबकि दीगर लोगों या नाशों की तलाश अभी भी जारी है। याओंडे अफ्रीका के सबसे गीले शहरों में से एक है। भारी बारिश से इस साल पूरे मुल्क में सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई हुई है। उसने बुनियादी ढांचे को कमजोर कर दिया, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए हैं। बेलारूस के वज़ीर ख़ारिजा व्लादिमीर माँ की 64 बरस की उम्र में अचानक इंतकाल कर गए। बेलारूस की वज़ारत ख़ारिजा ने अपने बयान में कहा है कि वज़ीर ख़ारिजा व्लादिमीर माँ की अचानक चल बसी। वज़ारत की जानिब से उनकी मौत की वजह नहीं बताई गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक व्लादिमीर माँ की 1958 में बेलारूस के इलाके ग्रोडनो में पैदा हुए थे। वो 2012 से वज़ारत ख़ारिजा के उमूर संभाल रहे थे। रूसी मीडिया के मुताबिक बेलारूस की आन जहानी वज़ीर ख़ारिजा की पीर के रोज़ रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोव से मुलाकात तय थी। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। बटला हाउस और शाहीन बाग में MCD इलेक्शन 2022 जलसे की तैयारी। MIM पार्टी के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी करेंगे शिरकत। एलाइट स्कूल के तलबा के लिए मल्टीपर्पज साइंस एग्जीबिशन का इनेकाद। KG ता तीसरी जमात के तलबा और तालिबात ने बेहतरीन मॉडल्स किए पेश। और अरविंद केजरीवाल ने मुसलमानों और तबलीगी जमात को बदनाम किया था, MIM सरबराह असदुद्दीन ओवैसी का इल्जाम। BBN न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी
दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।